Hello, friends, and welcome to Prepeyes. So, let me show you one quote. Let me show you one quote by a historian. और इस quote में actually historian क्या कहते हैं? He was responsible for laying the foundation for British rule throughout the India and setting standards for the services, courts, and revenue collection that remained remarkably unaltered almost to the end of British era. So, इसमें actually इस particular quote में एक historian एक पर्सनालिटी का इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का हिस्ट्री में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ही वाज द पर्सन हु लेड द फाउंडेशन फॉर द ब्रिटिश रूल थ्रू आउट द इंडिया एंड सेट स्टैंडर्ड्स फॉर सर्विसेज स्पोर्ट्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन. तो हु वाज दैट पर्सन? दैट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस. दैट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस. एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, जिनको हम फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहते हैं. ओके, सो ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया इनको क्यों कहते हैं, दैट इज आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. Okay, that's also we are going to discuss. So our today's topic is Lord Cornwallis, who was Governor General in India from 1786 to 1793. Okay, so before we start this particular topic, let me tell you something about me. So I am Prashant Bhule. I am GS faculty for UPSC CSE. I have been teaching different GS subjects in different institutes for UPSC CSE since last almost 4 to 5 years. I have also appeared for the CSE interview twice. तो ये एग्जाम की मुझे काफी अच्छे से जानकारी है. There are lots of students whom I have helped to crack the different stages of this particular exam. Okay, so now let's go to the topic of the Lord Cornwallis. Okay, so Lord Cornwallis के बारे में देखने से पहले थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, और उनका बैकग्राउंड भी काफी इंटरेस्टिंग है. ओके, ये जो गवर्नर जनरल थे उस वक्त, ये कोई हम कह सकते हैं कि कॉमनर फैमिली से नहीं थे. he was born in the an aristocratic family. एक aristocratic family से थे ये. ओके, 1757 में ब्रिटेन की आर्मी ज्वाइन करते हैं. अपने फादर के डेथ के बाद ये हो बनते हैं अर्ल कॉर्नवालिस. अर्ल कॉर्नवालिस मतलब क्या? अर्ल क्या होता है? अर्ल एक नोबलमैन की रैंकिंग होती है ब्रिटेन में. दिस नोबलमैन जो थे ये रैंक किए जाते हैं, उसमें अर्ल एक उसमें से रैंक था. तो पॉइंट हियर इज कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अ नोबलमैन. So we can say he was the first nobleman to become the governor general in India. He was also a member of House of Lords. मतलब एक member of House of Lords मतलब अपर हाउस जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का उस वक्त, उसके भी ये मेंबर थे जैसे हमारा राज्यसभा है. Okay, so he was kind of also first parliamentarian who actually became the governor general in India at that particular time. Okay, and apart from that, he is also very famous for what? His participation in the American War of Independence. American War of Independence में एक काफी important military general जो थे ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, and he is actually very famous for something called the siege of Yorktown. If you study the world history, you will understand कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान 1781 में there was a battle of siege of Yorktown, और यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड ब्रिटिश फोर्सेस जो है ये सरेंडर करते हैं बिफोर द फ्रेंच एंड अमेरिकन फोर्सेस. उनकी जो कंबाइंड फोर्सेस थी, अमेरिकन फोर्सेस एंड फ्रेंच फोर्सेस, उसके आगे एक्चुअली लॉर्ड कॉर्नवालिस और उनकी फोर्सेस जो है सरेंडर करती है. ओके, एंड दिस वाज अ वेरी डिसाइसिव बैटल. ये काफी डिसाइसिव मोमेंट था बिकॉज इस ये हम कह सकते हैं लास्ट इतनी बड़ी लार्ज लैंड बैटल थी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, और इस बैटल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू सीरियसली निगोशिएट विद द अमेरिकन्स दैट टाइम. ओके, लेकिन ये बैटल हारने के बाद ऐसा नहीं है कि इनका कद काफी छोटा हो जाता है वहां ब्रिटेन में, नहीं. He had good contacts there, और इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में also he had actually fought many battles and won for the Britain. So that's why then he was appointed as the governor in military, civil and military governor in Ireland. And finally 1786 में he became the governor general. Governor general of India में नहीं कहूँगा because ये designation उस वक्त नहीं था. So he becomes the governor general in India in 1786 that time, and at the same time he becomes the commander in chief of India also. इंडिया में ये आर्मी के मतलब उस वक्त की जो मिलिट्री फोर्सेस है उनके कमांडर इन चीफ भी बनते हैं. ओके, तो ज्यादा कंट्रोल एक्चुअली इनके पास होता है उस वक्त. तो नाउ व्हेन ही बिकम्स द गवर्नर जनरल, उसके बाद क्या होता है उसके बारे में हमें देखना है. ओके, सो फर्स्ट फैक्ट तो आपको याद रखनी है कि गवर्नर जनरल कब थे, 1786 से लेके 1793 तक. इनफैक्ट काफी कम लोगों को ये पता होगा कि ही बिकेम गवर्नर जनरल इन इंडिया ट्वाइस एक्चुअली क्या है, ये गवर्नर जनरल बनते इंडिया में. फर्स्ट ही बिकेम in 1786 to 1793, and again in 1805 he came back to India and he became governor general. But this second tenure was very small. Why? Because he died within 2 or 3 months. He died in India itself. Okay, so he was also a governor general who actually died in India.
तो ये टेन्योर काफी स्मॉल था, 2-3 मंथ्स का, सो दैट वी डोंट हैव टू स्टडी। सो गवर्नर जनरल बस इतना याद रखना कि ही वाज देयर ट्वाइस। अब क्या क्या रिफॉर्म्स एक्चुअली इंडिया में लाते, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको पता ही होगा कि ही इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल, बनारस, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा। एक वन ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी। सो लैंड रेवेन्यू सिस्टम वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर। परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम क्या होती है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, वी कैन डिस्कस दैट इन अदर वीडियो आल्सो, बट यहाँ बस आपको याद रखना ही है। देन ही वाज इन्वॉल्वड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में ये ब्रिटिश फोर्सेस को पर्सनली लीड करते हैं। ओके, और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में ही डिफीटेड टिप्पू सुल्तान, राइट। एंड देन दिस ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम जो है 1792 में इस वॉर के बाद उस वक्त साइन होती है ब्रिटेन के साथ। ओके, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, ही इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। उसका रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन, क्यों ऐसा कहा जाता है, वो फर्स्ट ऐसे पर्सन थे कि जो ट्राई करते हैं कि ब्रिटेन की जो सिविल सर्विसेज है उसको इंडिया में प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज की जाए, उसको रेगुलेट किया जाए, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाए, रूल्स बनाए जाए, तो उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना। जो उससे पहले सर्विसेज थोड़ी हॉच पॉच तरह की थी, प्रॉपर रूल्स वगैरह नहीं थे, तो अब उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने का ट्राई जो फर्स्ट टाइम अगर कोई करता है तो दिस इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो उसका भी यानी कि फाउंडेशन जो है ही विल ले डाउन इन इंडिया। तो क्या करते हैं, ऐसे क्या क्या रिफॉर्म जो है उस वक्त सिविल सर्विसेज में लाने का ट्राई करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज जो है, देखो उस वक्त होता क्या था बिफोर लॉर्ड कॉर्नवालिस, कि किसी के भी रिकमेंडेशन से, ब्रिटेन में किसी के रिकमेंडेशन में इंडिया में किसी यूरोपियन को या किसी ब्रिटिश को इंडिया में सिविल सर्विसेज में अपॉइंट किया जाता था। ओके, प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं था, ऐसा नहीं था कि कुछ वेल क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन का रिकमेंडेशन है ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, तो उसको वहां अपॉइंट किया जाएगा। दैट वाज द थिंग। तो ऐसा प्रॉपर कोई सिस्टम वाज नॉट देयर। तो सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करते हैं, ही सेड कि ओनली क्वालिफाइड पीपल जो है अब ये सर्विसेज में एंटर करेंगे इंडिया में, सिविल सर्विसेज में। ओके, रिकमेंडेशन किसी का नहीं चलेगा, नो रिकमेंडेशन फ्रॉम द इंग्लैंड, आई विल नॉट पे अटेंशन टू दैट। क्वालिफाइड लोग है, दे आर गोइंग टू बी इन द सर्विसेज। ओके, अब उस वक्त होता क्या था कि बिफोर लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ऑफकोर्स आफ्टर लॉर्ड कॉर्नवालिस आल्सो, ये सिविल सर्वेंट्स थे ना, दे वर वेरी करप्ट। दे यूज्ड टू टेक ब्राइब्स, गिफ्ट्स फ्रॉम द लोकल पीपल फ्रॉम हियर। दे वर इन्वॉल्वड इन द प्राइवेट ट्रेड, मतलब कंपनी का तो ट्रेड चल ही रहा था, लेकिन इनका भी एक प्राइवेट ट्रेड उस वक्त चलता था। ओके, काफी सारे एक्चुअली ब्राइब्स वगैरह ये लोग लेते थे। तो ये बंद करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करते हैं रूल्स की अगेंस्ट दी प्राइवेट ट्रेड। प्राइवेट ट्रेड तो वैसे पहले भी बैन किया गया था, लेकिन उसको अब प्रॉपर्ली एनफोर्समेंट उनका करना ट्राई करना। ओके, सिविल सर्वेंट्स को जो है डिबार किया जाता है, बैन किया जाता है कि दे कैन नॉट टेक एनी प्रेजेंट्स, ब्राइब्स फ्रॉम द लोकल हियर। ओके, और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस कंपनी ऑफिसर, कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है, उसको उनको भी कन्विंस करते हैं क्या, कि आप सिविल सर्वेंट्स की सैलरी बढ़ाइए। He convinced them to increase the civil servant salary so that they will not take bribes, they will not be engaged in the private trade. Okay, और प्रमोशंस भी हुए। उनका कहना होता है कि प्रमोशन जो होते हैं दे शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, दे शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट, सीनियरिटी। जो ज्यादा सीनियर है उसको प्रमोट करो। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो है ही विल ट्राई टू ब्रिंग इन द सिविल सर्विसेज। बट देयर वाज वन मोर एस्पेक्ट व्हिच विल से कि लिटिल रेसिस्ट एस्पेक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, वो ये है कि ही क्लासिफाइड दी सर्विसेज। सिविल सर्विसेज को क्या है, क्लासिफाई करते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन एक्चुअली कैसा होता है, वन सर्विस इज कॉल्ड एज अ कवेनेंटेड सर्विस, सिविल सर्विस, एंड अदर इज कॉल्ड एज अ अनकवेनेंटेड सिविल सर्विस। अब कवेनेंटेड सिविल सर्विस मतलब क्या, कवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में होगी सारी हायर पोस्ट्स। हायर पोस्ट मतलब कौन सी पोस्ट, दोस पोस्ट वो हैड वर्थ मोर देन 500 पाउंड्स। तो जिस पोस्ट की वर्थ मोर देन 500 पाउंड्स थी, जो हायर पोस्ट एक्चुअली जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है, ओके, जो बड़े बड़े पोस्ट है, तो इनको एक्चुअली क्या है, कवेनेंटेड सिविल सर्विस कहा जाता है। और ये हायर पोस्ट जो है दे वर रिजर्व्ड ओनली फॉर द यूरोपियंस। तो हायर सिविल सर्विसेज पोस्ट, जो कवेनेंटेड सिविल सर्विसेज पोस्ट है, ये बस यूरोपियंस के लिए एक्चुअली क्या है, उस वक्त रिजर्व थी। ओके, और दूसरी सर्विस थी दैट इज अनकवेनेंटेड सिविल सर्विस। अब अनकवेनेंटेड सिविल सर्विस मतलब क्या, ये लोअर लेवल की सर्विसेज थी, क्लेरिकल लेवल का जॉब जो है, ठीक है, क्लेरिकल लेवल की जो जॉब वगैरह अगर करने हैं तो लोअर लेवल की जॉब से ये अनकवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में थे, एंड दे वेर गिवन टू द इंडियंस। ठीक है, तो इंडियंस वेर बैन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम दी कवेनेंटेड सिविल सर्विस, या हायर जो पोस्ट होते सिविल सर्विस में इंडियंस को नहीं दिया जाता था। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। अब बाकी देखना, ये तो हुए सिविल सर्विसेज में उनके रिफॉर्म्स। अब बाकी कौन से ऑल रिफॉर्म्स एक्चुअली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उस वक्त किया है, तो लेट्स सी जुडिशरी रिफॉर्म्स। तो जुडिशरी रिफॉर्म में लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करते हैं, लेट्स सी क्विकली दिस पर्टिकुलर थिंग, कि डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स उस वक्त थे, ये क्रिमिनल कोर्ट्स होते थे।
दिस यूज्ड टू बी क्रिमिनल कोर्ट्स, ये क्रिमिनल कोर्ट्स थे। इसको एक्चुअली लॉर्ड कॉर्नवालिस उस वक्त एबॉलिश कर देते हैं, इसको एबॉलिश कर दिया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि लोअर कोर्ट से यहाँ एक्चुअली अपील होता था, तो इसको एबॉलिश कर देते लॉर्ड कॉर्नवालिस। और फिर उसकी जगह लॉर्ड कॉर्नवालिस विल एस्टैब्लिश 4 सर्किट कोर्ट्स, 4 ये सर्किट कोर्ट्स एस्टैब्लिश करते हैं कलकत्ता में, ढाका में, 4 प्लेसेस पे, मुर्शिदाबाद में और पटना में। कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना में एक्चुअली उस वक्त क्या है, ये सर्किट कोर्ट एस्टैब्लिश करते हैं। ओके, तो उस एक्चुअली जो बंगाल प्रोविंस था, इट वाज अ वेरी बिग प्रोविंस, तो इसलिए वहां ये सर्किट कोर्ट 4 एस्टैब्लिश किए। सर्किट कोर्ट्स मतलब क्या होता है कि सर्किट कोर्ट्स मतलब सेम जजेस होते हैं, दे विल एक्चुअली गो इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं उस सर्किट में, एक्चुअली दे विल, वो घूमते हैं। फॉर एग्जांपल कलकत्ता में दे विल सेट फॉर सम डेज, देन दे विल गो टू ढाका, देन दे विल गो टू मुर्शिदाबाद, दे विल गो टू पटना, तो काइंड ऑफ बंगाल प्रोविंस में दे आर गोइंग एट डिफरेंट प्लेसेस, तो इसको सर्किट कोर्ट्स कहते हैं। सर्किट कोर्ट्स का मेन पर्पस था कि अपील, लोअर कोर्ट से जो भी अपील है, ये अपील एक्चुअली सर्किट कोर्ट्स में, एंड दे विल बी हेडेड बाय होम, यूरोपियन जजेस, यूरोपियन जजेस से ये जजेस इस सर्किट कोर्ट में। ओके, अब सर्किट कोर्ट के बाद अगर फिर से आपको अपील करना है, तो दैट अपील विल बी डन वेयर इन सदर निजामत अदालत, यहाँ पे एक्चुअली आप अपील कर सकते हो सदर निजामत अदालत में। निजामत अदालत मतलब क्रिमिनल कोर्ट के लिए एक अपील के लिए एक्चुअली सदर निजामत अदालत है। ओके, तो यहाँ आपको सिविल के भी अपील होते हैं, लेकिन यहाँ ये अदालत थी जहाँ, और ये अदालत को ये शिफ्ट कहाँ करते हैं, कलकत्ता में, कलकत्ता में। तो सर्किट कोर्ट से अगर अपील करना है तो यहाँ अपील कर सकते हो। एंड दिस सदर निजामत अदालत, दिस वाज हेडेड बाय द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, उनके जो गवर्नर जनरल थे, काउंसिल थे, उन्होंने हेड की थी। तो याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक्चुअली। ओके, सेम वे ही ऑर्गेनाइज्ड द सिविल कोर्ट्स आल्सो, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होते थे, डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, जो सिविल कोर्ट्स होते थे, दीवानी मतलब सिविल कोर्ट जो है, इनको भी एक्चुअली क्लासिफाई करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दीवानी अदालत हो गए, सिटी में जो दीवानी अदालत कोर्ट्स हो गए, कुछ जिला कोर्ट्स एक्चुअली ऐसे हो गए। एंड ही आल्सो इंप्लीमेंटेड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज दैट, सेपरेशन ऑफ पावर, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होता है काफी एक इंपॉर्टेंट, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, ये सेपरेशन ऑफ पावर भी उन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये कलेक्टर के पास जो उस वक्त की जुडिशियल पावर थी, जुडिशरी पावर थी, तो जुडिशरी की पावर कलेक्टर से एक्चुअली ली गई, एंड कलेक्टर नाउ ओनली हैड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पावर। ओके, सो कलेक्टर को कोई मैजिस्ट्रियल फंक्शन एक्चुअली नहीं दिए जाएंगे, कलेक्टर के पास बस रेवेन्यू कलेक्शन का पावर होगा, जो आपको कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी का होना चाहिए, कलेक्टर इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। और जुडिशियल फंक्शन जो हो गए, ये एक्चुअली कलेक्टर से नहीं ले लिए जाएंगे, एंड दे विल बी गिवन टू जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक्चुअली वो दिया जाएगा। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर जो जुडिशरी बिटवीन एंड कलेक्टर, ये एक्चुअली उन्होंने किया। आज भी अगर आप देखना तो हमारे जो कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कभी कभी कहा जाता है, व्हाई, बिकॉज दे हैव सर्टेन जुडिशियल पावर, स्टिल दे हैव सर्टेन पावर्स एक्चुअली, बट दैट टाइम ही इंप्लीमेंटेड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये हुए कुछ जुडिशरी में रिफॉर्म्स। और क्या क्या जुडिशरी में रिफॉर्म्स थे, देखिए उनके टाइम पे एक प्रॉपर ग्रेडेशन ऑफ द सिविल कोड वाज एस्टैब्लिश, प्रॉपर एक हायरार्की ऑफ सिविल कोड्स एस्टैब्लिश हो चुकी थी। सो सबसे लोअर लेवल पे देयर वाज मुंशिप कोर्ट, दैट वाज हेडेड बाय द इंडियन ऑफिसर्स। देन हायर लेवल पे देखो, उसके आगे कौन सा था, रजिस्टर्ड कोर्ट, दैट वाज हेडेड बाय द यूरोपियन जज। अगर यहाँ से अपील करना है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील करना है तो हमने देखा था अभी सर्किट कोर्ट में हो सकता है अपील, वहां से सदर दीवानी अदालत में एक्चुअली अपील होगा कलकत्ता में। एक सदर निजामत अदालत थी क्रिमिनल, इसके लिए सदर दीवानी अदालत मतलब कलकत्ता में एक्चुअली ये दीवानी कोर्ट है। और अगर यहाँ से भी अपील करना है आपको, देन फाइनली किंग इन काउंसिल विल बी, जो उस वक्त का किंग इन काउंसिल थे, वहां पे एक्चुअली अपील होती थी हायर केसेस के लिए। हायर केसेस के लिए बेसिकली दिस अपील इज टू हैपन। एक प्रॉपर हायरार्की जो है, ग्रेडेशन ऑफ द सिविल कोड भी एस्टैब्लिश होता है, क्रिमिनल कोर्ट्स में भी एक्चुअली यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है कुछ रिफॉर्म्स लाते हैं। और अदर जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या थे, अब ये कोर्ट फीस एबॉलिश करते हैं, व्हिच वाज गुड फॉर द कॉमन मैन दैट टाइम, ठीक है, गरीब लोगों का अच्छा है कि कोर्ट फी एबॉलिश हो गई। लॉयर्स के लिए एक्चुअली रूल किए जाते हैं, रूल्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, कितनी फी आपने लेना चाहिए, कितना फी नहीं लेना चाहिए। तो ये लॉयर्स के रूल्स भी एक्चुअली किए जाते हैं कि इतना ही फी लेना है आपने, उसके रिगार्डिंग भी फी एक्चुअली उनका क्या है, फीस के रिगार्डिंग ही हैड गिवन सर्टेन रूल्स दैट टाइम। देन लोगों, उस वक्त के जो लोग थे, नाउ दे कुड सू द गवर्नमेंट सर्वेंट आल्सो। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ गलती करते हैं तो उनके खिलाफ भी लोग अब कोर्ट में जा सकते थे। एंड जो भी इनह्यूमन पनिशमेंट्स थी, लाइक लिम्स कटिंग होती है, कटिंग नोज वगैरह होता है, ये भी ये एबॉलिश कर देते हैं। ओके, तो जुडिशियल रिफॉर्म्स में अगर आप देखो जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम ही हैड डन मल्टीपल जुडिशियल रिफॉर्म्स आल्सो। एक इनके बारे में, जुडिशरी के बारे में उनके टाइम पे कह सकते हैं कि उनके इरा में, एंड वी कैन से कॉर्नवालिस इरा जो था, उस टाइम पे एक्चुअली देयर वाज वेरी स्टीप इंक्रीज, वेरी लार्ज इंक्रीज इन द लिटिगेशन। कोर्ट केसेस में काफी ज्यादा इंक्रीज होती है, और वो जनरली किस वजह से होती है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की वजह से।
ओके अब एक तरफ आपने लॉयर्स की फी जो है ये लिमिट कर दिया, कोर्ट फी जो है ये बंद कर दिया, तो कॉमन मैन भी अभी जमींदार के खिलाफ या बाकी लोगों के खिलाफ केसेस डाल सकता है। तो ये जमींदार के खिलाफ काफी सारे केसेस जमींदारी के सिस्टम के अंडर थी, तो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली दिस लिटिगेशन इंक्रीज्ड, इसकी वजह से काफी लिटिगेशन भी उस वक्त इंक्रीज होता है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट ही डिड मल्टीपल पुलिस रिफॉर्म्स आल्सो। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के पहले क्या था कि पुलिस जो थे दैट वाज अंडर द जमींदार, जो पुलिस थे और पुलिस के जो थानास थे लोकल लेवल पे, दे यूज्ड टू बी अंडर जमींदार, जमींदार का इस पे काफी इंफ्लुएंस था, उनके अंडर ही होते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, ये पुलिस जो है ये थाना जो थे, जो थानास व्हिच वर देयर, जो पीस एंड हमारे आपको हमारे यहाँ पे भी पुलिस थानास वगैरह होते हैं, तो जो मेंटेन करते हैं पीस एंड ऑर्डर, तो ये थानास जो है और ये ओवरऑल पुलिस सिस्टम है, इसको ये जमींदार से अलग करते हैं। Okay, and he placed this थानास and all police system under superintendent of police at district level. District level पे जो superintendent of police थे उनके अंडर एक्चुअली ये सब प्लेस किया जाता है। पुलिस को अच्छी सैलरी पे की जाती है, they were given more powers, उनको ज्यादा पावर्स भी दी जाती है, so that British Empire will become more strong that time। कोई अगर डिसेंड करता है तो उसको कर्व किया जाए। ओके और ओवरऑल यूरोपियन सिस्टम की टाइप एक्चुअली ये पुलिस सिस्टम कुछ एस्टैब्लिश यहाँ पे करना चाहते हैं। ओके सो दीज आर सम ऑफ द रिफॉर्म्स दैट वेर डन बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस दैट टाइम। ठीक है सो इसी वजह से जो हमने फर्स्ट कोड देखा था, ही इज काइंड ऑफ लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ओके कुछ स्टैंडर्ड्स ही हैड सेट, तो ये थे हमारे फादर ऑफ, हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के फादर ऑफ सिविल सर्विसेज जो हमने देखा था, दिस वाज अबाउट द लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके so thank you, thanks a lot, do watch such videos।